کرنا سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ سے آتے تو کس نے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. يا رب عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر, ہندی میں پانی, تمل میں تنی وغیرہ. تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا؟ تو پھر گاڈ کو جیسس بولو, اللہ بولو یا رام بولو, تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک ہی ہوگا. سوال ہے بھائی صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں. پانی کہو ہندی میں, یا واٹر کہو انگلش میں, یا تنی تامل میں, وہ سیم ہے, کچھ فرق پڑتا نہیں. اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گاڈ کہو یا جیزس کہو یا اللہ کہو یا رام کہو, ایک ہی ہے. اس سوال پہ جب غور کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف زبانوں میں الگ الگ دیگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے. ایک چیز کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پانی کہتے ہندی میں, انگلش میں ہم کہیں گے واٹر, اور گجراتی میں کہیں گے جل, تامل میں کہیں گے تنی, عربک میں کہیں گے موئے. لیکن شرط یہ کہ پانی کو ہی کہہ سکتے واٹر یا تنی یا موئے. جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے واٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو, لیکن جب میں پانی پیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ پانی میں بدبو آتی ہے, اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے, ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے. پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور. پی رہا ہے کچھ اور, کہہ رہا ہے پانی. میں لفظ میں کہنا چاہتا ہوں, وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں, وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا, لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے, کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی, جو بھی آدمی کو بدھی ہے, وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں, قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے, ایشور کی پتیما نہیں ہے, بت پرستی مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں, ہزاروں, کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے, ڈاکٹرز ہے, انجینئر ہے, پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی, مثال کے طور پہ سونا, ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا, انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ, عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں, وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے, آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ سٹون, اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے, اور وہ گھستا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے, یا 22 کیرٹ گولڈ ہے, یا 20 کیرٹ ہے,
یا 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती. एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्ला अबिदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना. आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम है. लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं. और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4. कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है. अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है. लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है न किसी से जना है. वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है. ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं. जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर. अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल राजेश का है. वो पूछते हैं, अगर इस्लाम के माने अमन है तो क्यों जिहाद यानी कत्ल व गारतगिरी का कुरान में हुक्म है, जबकि हिंदू धर्म में अमन की बात कही गई है. भाई साहब ने कहा कि कुरान में क्यों कत्ल के बारे में कहा गया है जब इस्लाम मजहब है अमन का, और हिंदुइज्म में अमन के बारे में कहा गया है. अक्सर हिंदू पूछते हैं कि कुरान में जिहाद के बारे में क्यों लिखा गया है, क्यों कत्ल के बारे में लिखा गया है. बहुत से लोगों, गैर मुस्लिम और मुस्लिम को गलत फहमी है ये लफ्ज जिहाद के बारे में. जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद करना. लोगों को गलत फहमी है कि कोई भी जंग, कोई भी मुसलमान अगर कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद. जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे खुद के फायदे के लिए हो, खुद के नाम के लिए हो, खुद के माल के लिए हो. जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल. और इस्लाम में जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव अगेंस्ट वन ओन इविल इंक्लिनेशन, जिद्दोजहद करना अपने खुद के नफ्स के खिलाफ, बुराई के खिलाफ. जिहाद के मानी ये भी होती है कि जिद्दोजहद करना माशरे को सुधारने के लिए. जिहाद के मानी ये भी होती है कि जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद करना. जिहाद उसे भी कहते हैं कि जंग करना जुल्म के खिलाफ, उसे भी कहते हैं जिहाद. लेकिन जिहाद के मानी है जिद्दोजहद. लोगों को गलत फहमी है और गलत तर्जुमा करते जिहाद का अंग्रेजी में एज होली वॉर. होली वॉर को अरबी में कहेंगे हर्ब मुकद्दसा, और ये अरबी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं आ पाएंगे. ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए, जब अंग्रेज अपना दीन, अपना मजहब फैला रहे थे तलवार के बल पर और हजारों लोग का कत्ल किया. उस टाइम कहते थे होली वॉर. आज की तारीख में यह लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए, जो बिल्कुल गलत है. और जब हम पढ़ते हैं दिगर मजहब की किताबों के बारे में, लोग गलत हवाला देते हैं कुरान मजीद का और लोगों को गलत फहमी में डाल देते. कई क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस भारत के हैं, उन्होंने भी किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास, और एक आयत को हमेशा कोट करते, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5. और वो कहते हैं काफी क्रिटिक्स, अरुण शूरी भी, कि कुरान में लिखा हुआ है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि जहां भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो. और उनका कहना है ब्रैकेट में, वो कहते एज दो हिंदू लोग, जहां भी आप काफिर को पाएंगे, जहां भी हिंदू को पाएंगे, आप कत्ल करो. कुरान में लिखा है. जब आप कुरान शरीफ खोलते हैं
और पढ़ते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है जहां भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो, लिखा है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना चाहिए वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड से, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में आयत नंबर 1 से हम पढ़ते, उसमें पता लगता है क्या एक मुआहदा था, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच, और ये पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने तोड़ा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में, अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे 4 महीने में तो ऐलान जंग, और जंग की हालत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों से, जब आपके दुश्मन आएंगे, जो लोग हक को छुटलाते हैं, काफिर लोग आएंगे, तो आप डरो मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग के बारे में है। आज की तारीख में कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए कहेगा कि लड़ो, दुश्मन का कत्ल करो, वो नहीं कहेगा कि भाग जाओ, वो ये नहीं कहेगा कि झगड़ा मत करो, कत्ल मत करो और मर जाओ। ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे मैदानी जंग में कि डरो मत, झगड़ा करो। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवा में आयत नंबर 5 से जम मारता है आयत नंबर 7 पर। क्यों? आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते इसके बाद, लेकिन अगर काफिर, अगर मुशरिक अमन चाहता है उसे दे दो, अमन चाहता है तो उसे अल्लाह का कलाम सुनने दो और हिफाजत के साथ एक महफूज जगह तक पहुंचाओ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि उसे जाने दो, लेकिन अगर वो काफिर अमन चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ। आज की तारीख में सबसे दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जाने दो, कोई भी ये नहीं कहेगा दुश्मन को हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ाओ। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है, जब भी आयत आती है कुरान मजीद में कत्ल के बारे में या इस टाइप के जिहाद के बारे में, किताल के बारे में, फौरन अगली आयत में अक्सर आता है अमन सबसे बेहतर है। सूरह अनफाल में पढ़ो, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में लिखा है कि तैयार हो जाओ, काफिर के खिलाफ झगड़ा करो। उसके बाद आता है अगर अमन चाहते हो बेहतर है। तो ये क्रिटिक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं और लोग को बहकाते हैं। मेरा तरीका है जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, तालौ इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। मैं हिंदियों से कहता हूं कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई मंत्रस है झगड़ने के बारे में, लड़ने के बारे में, किताल के बारे में, कत्ल के बारे में। और अगर हम तहकीक करेंगे तो कुरान से कई गुना ज्यादा महाभारत में है कत्ल के बारे में। तो हिंदू मुझसे कहता है, लेकिन जाकिर साहब कत्ल के बारे में ये जो श्लोकास है, मंत्रस है महाभारत में, वो हक और बातिल के दरमियान है, कुरान में भी वो है। तो हिंदू भाई मुझसे कहता है तो मुझे कुरान से कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो महाभारत के बारे में जानता है। तो हवाला देते तो कुरान भी कबूल करता है, ऐसे जंग से मुझे कोई शिकायत नहीं। और जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता एक नसीहत है श्री कृष्ण दे रहे अर्जुन को। अर्जुन कहता है भगवत गीता में पाठ नंबर 1 श्लोका नंबर 43 to 46 में, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पे रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से झगड़ा करना, लड़ना। हम जानते हैं महाभारत एक लड़ाई के बारे में है कौरव और पांडव के बीच, और जंग के मैदान में अर्जुन अपने हथियार रख देता है और कहता है, मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करूं, लड़ूं। फौरन बाद भगवत गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, ऐसे गलत ख्यालात कैसे आए तुझ में? इससे स्वर्ग से दूर जाएंगे, नरक में जाएंगे। हाउ कुड सच impure thought come in your mind? It will take you away from the planet of heaven. How could you be so important? और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है भगवत गीता पाठ नंबर 2 में मंत्रा नंबर श्लोक नंबर
31, 32, 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, क्षत्रिय का धर्म है कि वो लड़े और कामयाब है ब्लेसेड दो क्षत्रिय, वो लोग के ऊपर अच्छाई आए, वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने का मौका मिलता है, लड़ने का मौका मिलता है। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो वो गुनाह कर रहा है, अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा। और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं, वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सही बुखारी में से है, जिल्द नंबर 4, किताब जिहाद, पार्ट नंबर 2, हदीस नंबर 46, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा। बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज करते, कैसा धर्म है ये इस्लाम, कैसा मजहब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे और मर जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, स्वर्ग मिलेंगी, वापस आएंगे तो आपको दौलत मिलती है। जब हम भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता पार्ट नंबर 2 श्लोक नंबर 37 में लिखा है, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठो और लड़ो, अगर जंग के मैदान में तुम्हारा कत्ल होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे तो इस दुनिया की दौलत मिलेगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। मैं ये सोचता हूं कि कैसे ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, ये अरुण शूरी खुद की किताब नहीं पढ़ा, ना भगवत गीता ना महाभारत, और कुरान के बारे में खिलाफ लिखने लगा। अफसोस की बात है, खुद की किताब पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। तो इसीलिए हर मजहब में जब जरूरत है किसी का कत्ल करना गलत है। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो शख्स इस जमीन पे फसाद फैला रहा है। ये दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है तो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बचाता है तो वो सारी इंसानियत को बचाता है। तो कत्ल करना एक इनोसेंट आदमी का हराम है, लेकिन जब वक्त कत्ल के बदले कत्ल या जंग के मैदान में जहाँ जरूरत है जुल्म के खिलाफ लड़ना, तो भगवत गीता में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी, बाइबल में भी है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सही इल्म आपको लग जाएगा इस्लाम में क्या कहा गया है जिहाद के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात का ये आखिरी सवाल है। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है, लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا, سارے آسمان کا, سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے, بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں, اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت. آپ اور ہم بھی انسان ہیں تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے. اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا. وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا. اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا. اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا. لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے, جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا. اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا, لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا. اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں. اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز. طاقت ہے سب چیزوں پہ. اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77, سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے. اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز. لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز. اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے. تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے. اللہ اچھی چیزیں صرف کرتا ہے. اللہ از دا ڈور آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے.